Hello everyone, Namaskar. So this is the second session in the Arts and Craft series, and today we'll be answering a very important question that a lot of newcomers to mains as well as old hands seem to keep guessing कि भाई does handwriting matter? And I'll be showing you copies from this year's toppers, previous year's toppers to just make a point very clear कि in short, it does not matter as much as you think. It does matter for some particular reasons which we'll discuss in today's session. And at the same time I'll also talk about कि भाई जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि भाई पेनल्टी लग जाती है ख़राब हैंड राइटिंग से, क्यों होता है, क्या होता है. सो ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ बेसिक क्वेश्चंस कि कौन सा पेन इस्तेमाल करे, क्या करे, ना करे, बट दे सीम टू बी कि भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन है, but कभी कभार people get stuck. So we'll be answering all of these questions in today's video. So all of the 90s kids who have been brought up with that Apsara pencil wali ad जहाँ पे they're getting extra marks for good handwriting, you don't get extra marks for good handwriting. But if you have good handwriting and you make the examiner's life easy, maybe you get some half mark extra somewhere. There is no rule for it, but it might be a subconscious thing. But overall, अगर हम बात करें तो this is an absurd idea. You will not be getting extra marks for any good handwriting in UPSC particularly. And in some cases जहाँ पे ये penalty marks लगते हैं, so this, as you can see, is from a recommended candidate. This is from CSE 2018, and this is just a sample mark sheet that I picked up, not to prove a point, but to make you clear about कि भाई penalty marks ये handwriting के नहीं लगते हैं. इसके लिए UPSC एक पूरी लिस्ट निकालती है which talks about कि भाई आइडेंटिफिकेशन अगर आप कर रहे हो अपनी, आप पेपर पे अपने ओम नमः शिवाय टाइप चीज़ें लिख रहे हो, या मतलब you're using a very different colored pen which can be used to identify you. Why? Because mains में जो पेपर की चेकिंग होती है that is anonymized, and in such anonymized checking, if you are going out of your way to make yourself known to the person checking the paper, then that is a cause for penalty marks, right? तो ये हैंडराइटिंग के नहीं मिलते हैं. एंड बहुत ही क्लियर सी ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि पेनल्टी मार्क्स आर फॉर आइडेंटिफिकेशन. आपको मार्जिन्स जैसे पेपर में दिए हुए होते हैं, तो यू माइट हैव सीन द यूपीएससी वाला शीट. उस यूपीएससी की शीट में अगर आप मार्जिन्स में लिख रहे हो, सो देन यू गेट दोज पेनल्टी मार्क्स. कमिंग टू विच पेन शुड वी यूज़, तो इट हैज़ बिकम अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन बिगर देन इट इज़, एंड द सिंपल आंसर इज विच एवर इज मोस्ट comfortable for the very simple reason that you will be writing up to 6 hours per day. Mains will happen over 5 days, जिनमें से 4 दिन आप 6 घंटे लिख रहे हो. अगर आपको पेन 2 घंटे के बाद पकड़ने के बाद आपके हाथ में दर्द होता है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड पेन. सबके लिए ये डिफरेंट रहेगा. सम पीपल फील मोर कंफर्टेबल विद अ बॉल पॉइंट पेन, सम पीपल फील मोर कंफर्टेबल विद अ जेल पेन, सम विद अ फाउंटेन पेन. वॉट एवर वर्क्स फॉर यू इज़ फाइन. But the only thing you should focus on over here is that you should be comfortable writing in this pen for 6 hours a day. 6 घंटा अगर आप यूज़ कर पाते हो उस पेन को, तो दैट इज़ अ ग्रेट पेन. फॉर एग्जाम्पल, आई पर्सनली यूज यूनिबॉल एयर करके एक पेन आता है, 50-60 रुपये का एक पेन आता है ये. एंड मतलब मेरा उससे क्या होता था कि मेंस का पूरा एक पेपर में वो एक पेन इस्तेमाल हो जाता था. यूज टू राइट 50-60 पेजेस. इट यूज टू हैव सम 10-15% इंक लेफ्ट आफ्टर अ पेपर. तो इट्स अ कंफर्टेबल पेन फॉर मी. इतना उसमें दिमाग लगता नहीं था. नाउ कमिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर कि किस बेसिस पे आपकी हैंड राइटिंग आपका मार्क्स इम्पैक्ट कर रही है, तो सबसे ऊपर है क्लैरिटी. अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ी भी नहीं जाती है, तो नेचुरल सी बात है यू विल लूज मार्क्स फॉर बैड हैंड राइटिंग. अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन है सामने कि भैया बैड हैंड राइटिंग में नेगेटिव मार्क्स दीजिए. बट अगर एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग समझ ही नहीं पा रहा है, so then defeats the purpose of writing that answer. So clarity is of the utmost importance. You can have not such a good writing. Like for example, मुझे लगता था कि भैया मेरी राइटिंग बहुत ठीक ठाक है, ऐसे कोई ख़राब नहीं है. बचपन से मुझे बोला गया था कि भैया गुड हैंड राइटिंग. बट आई हैव गिवन सम टेस्ट वेयर आई बीन टोल्ड कि आई नीड टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, कि भाई एन और एम में कभी कभार फ़र्क नहीं पता चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. बट बिकॉज दीज सोर्ट्स ऑफ फीडबैक्स आई यूज टू गेट वंस इन अ ब्लू मून, माने कि 25 टेस्ट दिए तो उसमें से एक टेस्ट में कभी ये बोल दिया कि ये समझ नहीं आ रहा, तो देन यू कैन इग्नोर दिस सॉर्ट ऑफ अ फीडबैक. बट क्लैरिटी अगर आपको बार बार पॉइंट आउट करी जा रही है कि भैया आपका शब्द पढ़ा नहीं जा रहा, ये शब्द का मतलब क्या है नहीं समझ आ रहा, सो देन दैट मीन्स दैट विल बी अ प्रॉब्लम.
नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्लैरिटी के बाद सिर्फ और सिर्फ सुंदर हैंड राइटिंग पे लिखाई पे आपको नंबर नहीं मिलते. यू ऑल्सो हैव टू हैव रेलिवेंट कॉन्टेंट, नॉट जस्ट कॉन्टेंट, रेलिवेंट कॉन्टेंट. रेलिवेंट कॉन्टेंट जैसे कि कल की वीडियो में आपने देखा होगा, तो वी टॉक्ड अबाउट कि भाई इंट्रोडक्शन में कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू मेक योर इंट्रोडक्शन मोर एंड मोर रेलिवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर. तो कंटेंट का रेलिवेंस इज द सेकेंड थिंग विच यू नो improves your outcomes. And the third thing finally is presentation. So a lot of people tend to focus on presentation before everything else, before content, before clarity, कि भाई हम अंडरलाइन कर देंगे, हम गोला बना देंगे, हम डायग्राम बना देंगे. बट अगर आपका कंटेंट सही नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो आप कितने ही गोले बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. एंड नाउ लेट्स जंप टू क्लियर एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर्स टॉपर्स कि भाई किस तरीके से आपकी हैंड राइटिंग इम्पैक्ट करती है या नहीं करती है. सो दिस इज़ अगेन फ्रॉम द आंसर क्राफ्ट वर्कबुक विच इज़ पार्ट ऑफ आवर मेन्स फोकस ग्रुप. तो यहाँ पे आप देखोगे कि इशिता किशोर की हैंड राइटिंग, इफ़ यू लुक एट इट, इट्स वेरी क्लियर. लिपाक्षी, पद्मनाभपुरम, वर्ली आर्ट, अजंता केव्स, इट्स वेरी रीडेबल, राइट. तो नाउ दैट शी हैज़ ऑल्सो डन द प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, शी विल ऑब्वियसली बी रिवॉर्डेड फेवरेबली. तो पहले क्लैरिटी, बाद में बाकी चीज़ें. नाउ लेट्स लुक एट उमा हरथी का टेस्ट कॉपी. वेरी रीडेबल हैंड राइटिंग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम इशिता किशोर हैंड राइटिंग, बट स्टिल वेरी रीडेबल. तो बहुत लोगों को ये होता है कि भाई जॉइंट लिखना है, ये लिखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपने जो लिखा है वो क्लियर है. सो प्लीज़ ड्रॉप ऑल ऑफ दीज आइडिया, देर पॉइंटलेस, देर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. नाउ अक्षत जैन की हैंड राइटिंग देखो, तो अब फॉन्ट साइज में भी डिफरेंसेस देख लो आप. कहीं किसी का फॉन्ट साइज छोटा है, किसी का बड़ा है, तो डजंट मैटर. यहाँ पे अक्षत जैन वाला जो कॉपी है, इट इज़ स्क्वीज्ड अ लिटिल बिट. तो इफ़ यू मेक इट फुल पेज, तो यू विल सी कि उनका फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा है. तो सम पीपल हैव ह्यूज, एक लाइन में 4 ही वर्ड आते हैं. सम पीपल ऑन द अदर हैंड भी एक लाइन में 6 वर्ड लिख देंगे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा. नाउ लुक एट श्रुति शर्मा's कॉपी, शी वॉज AIR1 लास्ट ईयर. तो यहाँ पे नॉट जस्ट इज शी क्लियर, द इंडियन नेशनल कांग्रेस was set up in 1885 for the first pan-India organization, later being instrumental in granting of Indian independence in 1947. तो it is relevant. Why? Because question को आप देखो तो भाई relevant भी है ये intro, हैंड राइटिंग उनकी क्लियर भी है, एंड अब देखो उन्होंने अंडरलाइन भी किया है, पॉइंट भी बनाया है. तो अब obviously she will be looked at favorably because she has all three things. She has clarity, she has content, and she has presentation. Now coming to some bad handwriting ka copies. This is not a bad handwriting, this is still a very good handwriting from Shubham Kumar, AIR1 in 2020. But again, clarity, content, and finally presentation. तो coming to some bad handwriting, तो legible handwriting, illegible का बस यही फंडा है कि भाई आपकी handwriting अगर सामने वाले को पढ़ने में आ रही है. So this is a copy of Shubham Balsal. Now, I'm not saying that this is bad handwriting, but if you look at comparatively to, Shubham Kumar's copy, so then relatively this is not that great a handwriting, but it is still readable, and that is the point कि फ़र्क नहीं पड़ता. आप डॉक्टर वाला कीड़ा मार के आओगे, जैसे डॉक्टर तो यूँ लिख देते हैं, तो ये कीड़ा आप मार के आओगे मेंस में, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स. बट यू डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट कि भाई कैसी मेरी राइटिंग है, क्यों करें, क्या करें, ना करें. बिकॉज शुभम बंसल गॉट AIR43 in 2019, and if you're looking at this year's rankers, so we have Anirudh Yadav from CSE 2022, he got AIR8, and look at his handwriting also. It is very clear, that's it. सुंदर शब्द बनाने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा घिचपिच लगती है, बट पढ़ने में क्लियर है, कंटेंट उन्होंने पूरा डाला है, एंड प्रेजेंट भी अच्छे से किया है, राइट. सो इन दिस केस मतलब हैंड राइटिंग इज़ नॉट आउटस्टैंडिंग. कि अब जैसे पीछे हम इशिता किशोर, शुभम कुमार वाली हैंड राइटिंग्स देखें, तो दे वर लाइक गुड हैंड राइटिंग. वो देख के भी अच्छा लगता है कि भाई हाँ, मतलब इट्स वेरी वेरी फ्लोइंग. नॉट फ्लोइंग, still got AIR8. And that is the point of today's video, that handwriting does not matter as much as you think. So if you're giving mains this year, or if you're preparing for any future year for civil services exam, start writing and don't worry too much about कि मेरी handwriting खराब है, नहीं है, क्या दिक्कत है.
एंड में फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि भाई आप कितना पेपर को कंप्लीट कर पाते हो और सामने वाला जो आपने लिखा है उसको पढ़ पाता है कि नहीं. सो इफ़ यू वांट the samples of you want this PDF, it will be available on our Telegram channel. The link will be in the video description. And if you're preparing for mains 23, best of luck and have fun.